Asian tradition. Hence, it embodies unity of mind and body, thought and action, harmony between man and nature. It's not about exercise, but to discover oneness with yourself. So if we see the present scenario or the lifestyles we have, which completely stuffed with stress and strain, yoga is the best therapy which can easily help us to come out of all these negativities. So without just taking much time, I would like to request Dr. Chandan for the welcome speech. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir. Yes, Hello. yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, most respected Principal Dr. R.K. Sharma ji, Senior Faculty Professor Ritu Jaswal, Organizing Secretary Dr. Anju Pathak, all my dear colleagues and participants. Very good morning to all of you. Before we set out on this journey of self-discovery, I take this opportunity to extend my heartiest welcome to one and all. Special thanks to Principal Dr. R.K. Sharma ji for providing support, guidance and encouragement to hold this event. In next 11 days, we shall not only truly discover our inner selves, but also equip ourselves to take on the challenges that pandemic has thrown upon us. The pandemic has brought in a lot of uncertainty about each and everything, and there's a lot of confusion even among medical fraternity due to very little understanding of this disease. During the lockdown, people became slaves to this new situation. They had to adjust to an entirely new style of living, working and socializing. With daily routines disrupted, it is natural for anxiety, stress, exhaustion, sleep disorders and other issues to take center stage. While many are locked inside their houses with their families, others are living alone and the situation is interfering with their emotional well-being. In these tough times, when human well-being has become a major concern, yoga is the best thing to adopt as a lifestyle habit. It will surely help us in gaining control over our body and our emotions required in this fight against this scourge. Once again, I welcome you and urge you to participate in this workshop wholeheartedly to make it a success. Thank you very much. So now I request respected Principal Sir to just say a few words on that is International Day of Yoga. थैंक यू मैडम रितु। आज इस 10 दिवसीय योगा शिविर में उपस्थित सभी महानुभाव, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर चंदन, मैडम रितु, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम अंजू पाठक, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट तो सारे जो आज गूगल के गवर्नमेंट कॉलेज दौलतपुर साहब इस योगा वर्कशॉप में इन सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस योगा का कार्यक्रम इस समय में हमें इसकी रेलेवेंस इस समय इस तरह समझ आई कि जो मेंटल ट्रॉमा एट प्रेजेंट पैंडेमिक के कारण से सोसाइटी के ऊपर से गुजर रहा है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको फेस करने के लिए एक योगा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने आप को दोबारा पहले से ला सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय परिवेश में हम भला तो भला शब्द को कम महत्व देते हैं, बल्कि इस बात का महत्व देते हैं कि माध्यम और अंत दोनों ही इम्पोर्टेंट है। योगा हमें इन दोनों चीजों के बारे में सिखाती है कि सिर्फ एंड रिजल्ट तक ही हमने नहीं पहुंचना है, बल्कि जिस रास्ते से चल करके हमने एंड रिजल्ट तक पहुंचना है वो हमें योगा के माध्यम से आता है। योगा हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई हम भारतीय संस्कारों को एक विरासत, और इस विरासत में हम ना सिर्फ अपनी शारीरिक क्षमताओं को ही डेवलप करते हैं, बल्कि अपने मानसिक,
बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को भी योगा के माध्यम से हम अपने ध्यान करते हैं। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और आज के समय में जो सोसाइटी के ऊपर से गुजर रही है और इनसे बाहर आने के रास्ता ढूंढने के लिए योगा हमें बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकता है। ये हमारे जहन में जब विचार आया तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अंजू पाठक के माध्यम से हम इस स्थिति तक पहुंचे कि हम इसे एक वर्कशॉप के फॉर्म में बनाए और इसको हम इस तरह से बना पाए कि अपने साथ साथ समाज को इसके बारे में बता पाए। इसलिए हमने ये 10 दिन का ऑर्गेनाइजिंग कैंप एक ऑर्गेनाइज किया है। 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक ये हमारा कैंप चलेगा और 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे पर हम इसको समापन करेंगे। और ये सिर्फ कैंप हमारा कैंप ही नहीं है, बल्कि हम ये चाहेंगे कि इस कैंप के माध्यम से हम सभी इसे अपने लाइफ रूटीन में ले जाएं और लाइफ रूटीन के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बता पाएं और ये बता भी कि योगा के माध्यम से हम किस तरह से इस समय की सिचुएशन को फेस कर सकते हैं और अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। हम ज्यादा कंसंट्रेशन हमारी योगा की तरफ रहेगी। ज्यादा समय ना देते हुए एक बार आप सब धन्यवाद करता हूँ जो आप गूगल मीट के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी को सेफ रहिए और साथ अपनी मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास ये इस शुभकामनाओं के साथ आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि योगा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के समय का। सो नॉट टेकिंग मच टाइम, हम एक्टिविटी पे चलेंगे सीधे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप सभी सुख आसन में बैठ जाएं, जिसको हम चौकड़ी मार के कहना बैठते हैं। तो सुख आसन में कमर आपकी बिल्कुल सीधी, हाथ जोड़ेंगे। हम पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम संरक्षध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। धीरे से आंखें खोलेंगे और इसी मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे योगासना पे चलेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पहले आप अपने गर्दन से शुरू करेंगे। पहले गर्दन को पीछे लेके जाना है। जब हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो इनहेल करना है, जब हम आगे लेके आएंगे तो एक्सहेल करना है। इनहेल और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कुछ ऐसा है, जब हम अर्थ से दूर जाते हैं तो इनहेल करते हैं, जब अर्थ की तरफ आते हैं तो एक्सहेल करते हैं। तो 5 राउंड्स करेंगे हम, स्टार्टिंग फ्रॉम इनहेल बैक, एक्सहेल, गो स्लोली। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो बहुत धीरे धीरे करेंगे। गो बैक, inhale, again exhale. Try to touch your chin to your chest. Inhale, exhale. Inhale, exhale. एक बार और, inhale, exhale. प्रॉब्लम है वो इस एक्सरसाइज को बहुत धीरे करेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। राइट साइड पूरा पीछे देखने की कोशिश कीजिएगा। अगेन राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज करेंगे। पहले कंधे घुमाने हैं, पहले आगे की तरफ 5 बार आगे घुमाइए।
अगर आप थक जाते हैं तो जबरदस्ती नहीं करना, आप अपनी हाथ नीचे कर सकते हैं। इस तरफ आएंगे तो दोनों कोहनियों को जोड़िए, पूरा रोटेशन करके exhale, inhale, exhale, down, up, up, अंदर की तरफ। अब राइट साइड बेंड होंगे पहले, जितना हो सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना, आगे की तरफ ऐसे नहीं झुकना है, साइड से, इस तरह से। वैसे ही लेफ्ट साइड आइए, आपके साइड में स्ट्रेच फील होगा। अगर स्ट्रेच फील हो रहा है दैट मींस उस तरफ का फैट बर्न होगा। ऐसे जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं कमर से, उतना बड़ा सर्कल बनाइए। क्लॉकवाइज अदर साइड, फिर बेंड होना है आगे, फिर पीछे आइए, फिर से बेंड होइए, फिर से वापस, फिर से पंजों पे आइए, पंजों को उठाइए और एड़ियों पे बैठ लीजिए। इससे आपकी बॉडी के सारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो प्रेस होते हैं। कीजिए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए हाथों को। अब अपने इनहेल करते हुए अपने पंजों एड़ियों को उठाना है, पंजों पे आना है, होल्ड कीजिए। इसके बाद फिर हम अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और नमस्कार की लिए रखेंगे। अगर आपका पैर यहाँ है तो भी ठीक है, गलत कुछ नहीं है, यहाँ है तो भी ठीक है, यहाँ है तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए एक टांग पे रखने की। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और नमस्कार मुद्रा में किसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए। होल्ड कीजिए, अपनी एड़ी को देखिए ऊपर की तरफ, होल्ड कीजिए। आपके कंसंट्रेशन को भी बढ़ाने में, बैलेंस को बढ़ाने में मदद करता है। करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, पूरी बॉडी स्ट्रेच करनी है और एक्सहेल करते हुए आपने नीचे तक झुकना है, साइड में प्लेस करना है और एक्सहेल करते हुए आपने नीचे की तरफ जाना है। स्ट्रेच की बॉडी और नीचे की तरफ जाइए आसन में। जो लोग कर सकते हैं वो कोशिश कीजिए पहले अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट एड़ी पे रखिए, राइट हैंड राइट पे रखिए और अपने हेड को पीछे लेके आइए। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेंगे और बॉडी को स्ट्रेच करते हुए लेके जाना है आगे की तरफ जितना जा सकते हैं। लेग को लिफ्ट करेंगे और फिर दूसरी को उठाएंगे। जो नॉर्मल है, जो लोग कर सकते हैं वो इनहेल करते हुए भी दोनों ही लेग्स को ऊपर की तरफ ले आएंगे। इसको लेके आना है ऊपर और फिर पीछे की तरफ जाना है। नी नहीं मोड़ेंगे, सपोर्ट कीजिए अपनी बैक को, नी बिल्कुल सीधे इस तरह से, इस तरह से आप आगे की तरफ जाइए फिर पीछे आइए, इस तरह से रोलिंग कीजिए। अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, जितना ऊपर जा सकते हैं। यहाँ तक जा सकते हैं ठीक है, यहाँ तक जा सकते हैं वो भी ठीक है, पूरा जा सकते हैं वो भी ठीक है और ऊपर रहने की कोशिश कीजिए इस तरह से। 5 लग सकते हैं, 6 कीजिए, फिर 7 सेकंड कीजिए, फिर 10 तक पहुंचिए। एक्सलेशन ज्यादा करना। चलिए सेकंड राउंड। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल एंड एक्सहेल। उसके बाद आप 30, 40, 50 इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके डेली आपने 3 राउंड करने। एक बार फिर से करेंगे। यस, इनहेल, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिदुपकारे